Hello, good afternoon. I'm back with another video. So last class we saw about how to solve a problem using least cost method. So today I have taken up a new problem and I will show you how to do that using the northwest method. The concept remains the same. We'll have to find out the most feasible way or combination by which the raw materials or material can be shipped from stations to the destination. The same thing is given in the form of a grid. Those of you who have not seen the last video, for them I will brief once again. So in the left hand corner of the grid there are S1, S2, S3, which are the stations, supply stations, and in the D1, D2, D3, D4 top are the destinations, and this is the supply capacity of each of the stations that is given: S1 250, S2 300, S3 400, and the corresponding demands from of each of these destinations are also given. D1 is 200, D2 is 225, and similarly D4 250. So the first step, as I mentioned yesterday, is to add the supplies and demands to check whether it is a balanced problem or a non-balanced problem. Okay, so here let's add this. So it comes to be 0, 5, 950. Total supply comes to 950. Total demand, let's add this 450, and here 500. 450 plus 500, 950. So total supply is equal to total demand. So this is a balanced problem. Okay, balanced. So if you want me to do a non-balanced problem, I can do that as well in another video. Let me know in the comment section. Just to brief you, like if there is an unbalanced problem, say let's say for example the total supply comes to be 950 and the total demand comes to be 900 or 1000, anything. So there exists a difference between the supply and the total supply and the total demand. So in that case, wherever the shortfall will be, like if the demand is less than the total supply, then we'll have to add another column to adjust for the total demand. And similarly, for if the thing exists for supply, then we'll have to add another row to make that both of them equal. I can solve another problem in another video maybe. If you are interested, you can let me know in the comment section. Okay, so going ahead now, in the लीस्ट कॉस्ट में हमने क्या किया था, हमने सबसे छोटे वाले सेल्स को लेके उसको उससे प्रोसीड किया था स्टेप बाय स्टेप. आइटरेशन सेम है, ये भी आइटरेटिव मेथड है, बट इसमें वी आर नॉट गोइंग टू लुक इनटू द लीस्ट. नॉर्थ वेस्ट, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, नॉर्थ वेस्ट. द प्रायोरिटी हेयर और द चेक पॉइंट हेयर इज नॉर्थ वेस्ट. आपको नॉर्थ वेस्ट में देखना है. तो लीस्ट हो ग्रेटेस्ट हो डजेंट मैटर हेयर. तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, लेट मी ड्रॉ द डायरेक्शंस एज वेल, थोड़ा ईज होगा. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट इज दिस नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, 45 डिग्रीज दोनों से. तो हियर नॉर्थ वेस्ट इज दिस वन 11. ठीक है, एनसाइकल कर लेना. विच एवर सेल यू आर वर्किंग ऑन, एनसाइकल दैट, क्योंकि लास्ट में कॉस्ट निकालना है. तो वो भी आज मैं दिखा दूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट. ओके, तो 11 लिया आपने. नाउ corresponding row, corresponding column, the corresponding demand and corresponding supply, 200, 250, whichever is the lowest, we write that here. In this case 200 is lowest, so this is 0. And so इसमें basic फंडा क्या है कि take the lowest of the corresponding demand and corresponding supply, here in this case is 200, and subtract the demand, like I'll show you, 200 minus 200, so 0. ठीक है, एंड यहाँ पे 250 माइनस 200, सो 50. ये 50 ऐसे नहीं आया, इसको सब्ट्रैक्ट करके वी गेट द 50. एंड सिंस इट गेव अस 0, तो ये विल हैव टू एलिमिनेट दिस एंटायर कॉलम. दिस इज ओवर. ठीक है, इसको लेके अभी हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है. नाउ वी लुक द नेक्स्ट. अब फिर से नॉर्थ वेस्ट देखो. नॉर्थ वेस्ट कौन है, ये है नॉर्थ वेस्ट. अब फिर से कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड, कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई देखो. कॉरस्पॉन्डिंग लोएस्ट कौन सा है, 50. तो क्या करना है, माइनस कर देना है लोएस्ट से. ठीक है, सॉरी 175, राइट. ये हो जाएगा 50 माइनस 50, 0. तो अब इस ये ख़त्म कर दो. और क्या मैंने मिस किया, यस, यहाँ पे लोएस्ट को भी लिखते जाना है. तो लोएस्ट क्या था, 50 था. ठीक है, अब नॉर्थ वेस्ट देखो. दिस इज़ द नॉर्थ वेस्ट नाउ. ठीक है, लोएस्ट कौन सा है, 300 एंड 175 में कॉरस्पॉन्डिंग. समझ रहे हो ना, फॉलो कर रहे हो. कोई भी डाउट हो मुझे टाइम स्टैम्प
देख के कमेंट में बता देना डाउट्स, ठीक है। यहाँ पे लोएस्ट है 175, लिख दो 175, माइनस कर दो 175 माइनस 175 ज़ीरो, माइनस 175 कितना होगा 125, ठीक है। एलिमिनेट दिस, ख़त्म हो गया ये भी, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट ये है, दिस इज द नॉर्थ वेस्ट राइट 14। अब कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई 125 275, लोएस्ट कौन सा है 125, तो माइनस करो 125 से कितना आएगा 150, यहाँ पे ज़ीरो, लोएस्ट यहाँ पे लिखते जाना है 125, ख़त्म, दिस रो गेट्स ख़त्म, क्रॉस इट। अब नॉर्थ वेस्ट दिस वन, लोएस्ट क्या है 150, आउट ऑफ 150 एंड 400 150 माइनस 150 ज़ीरो, ख़त्म, ठीक है। माइनस 150 इज़ 250, बस अब क्या बचा 250 250 250 ओवर, गॉट इट। तो फिर से नॉन डिजेनरेसी के लिए चेक करेंगे। नंबर क्या बताया था मैंने, याद करो, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4, तो n प्लस m माइनस 1 क्या होगा, इट विल कम आउट टू बी 4 प्लस 3 माइनस 1, दिस इज 6। और कितने एनसाइकिल हुए, हाउ मेनी हैव वी एनसाइकिल्ड, 1 2 3 4 5 6, गॉट इट। तो ये दिस इज अ नॉन डिजेनरेट, हेंस नॉन डिजेनरेट solution. अब now we'll take out the cost, finding of cost. Now we'll understand कि why I did these things. अब cost कैसे निकलेगा, आपने जो लिखा है सेल के अगेंस्ट में, ओनली टेक द एनसर्कल सेल्स, देयर आर सोल्यूशन सेट्स, तो उसके अलावा कोई भी और सेल को नहीं लेना है। आई एम रिपीटिंग, ओनली टेक द एनसर्कल सेट्स, एनसर्कल सेल्स वैल्यूज वाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। और क्या करना है उसके लिए, 11 एनसाइकिल्ड है, लिख दो पहले एनसाइकिल वैल्यूज़ को लिख दो, कोई भी ऑर्डर में, डजेंट मैटर विच ऑर्डर यू आर राइटिंग, ठीक है। अल्टीमेटली ऐड ही करना है, थोड़ा सा गैप दे के ऐसे करके लिख दो, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है, द वैल्यूज दैट आर रिटर्न, उसके बगल में जो जो मैंने लिखा था, 11 के बगल में 200, हाँ, 18 के बगल में 175, 13 के बगल में 50, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट, दैट एक्ट्स एज द वेटेजेस, ठीक है, ठीक है। तो आई एम राइटिंग द वेटेजेस, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। अब लिखते जाओ, अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कहीं पे भी, इफ़ यू वांट टू रिपीट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिपीट एक्चुअली, तो आप यू कैन सी बाय रिवाइंडिंग, ओके। आप रिवाइंड करके देख सकते हो, इट इज़ नॉट मच ऑफ अ बिग डील। हाँ, आई होप दिस इज़ गुड। तो ये आएगा 3150, ये 1750, एडिंग ऑल दीज आपको आएगा दिस, ठीक है। So this is the total cost. I hope you got the concept, and if you like the video, please support me. This is a very new channel, this is a very new series that I have started to launch, so please guys show me your support. If you have any doubt, if you want me to discuss anything, any of your demands, please let me know in the comments, and please share it with your friends who are preparing or who are studying or who want to learn about operations research or anything. I can cover economic videos also in the upcoming videos, any themes, any examination, okay. So happy Akshay Tritiya guys, wishing you all the very best. See you soon in another video. Till then, bye bye, take care.